نہ صرف جرنلسٹ کے خلاف پولیٹیکل پارٹیز سے جو وابستہ تھے ان کے ساتھ بھی ناروا سلوک یہاں پہ کیا گیا ہے. مرڈر اور اساسینیشن ارشد شریف کا ہوا. مطلب یہ کس قسم کا ماحول ہے, کس قسم کا ہم نے معاشرہ جو ہے یہاں پہ بنا دیا ہے. ہمارے ہاں جو بے عزتی کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے. لباس کے ساتھ آپ کچھ نہ کریں تو دل میں وہ جو چین ہے, جو قرار ہے, وہ نہیں آتا. ہمارے معاشرے کا یہ معمول بن گیا ہے. لاہور شہر میں ایسے واقعات ہیں, سینٹ جوزفس کالونی میں, گوجرا شہر میں ہوئے ہیں, قصور میں لبادہ کسی اور چیز کا دے دیا, اور نہ کوئی آپ کا ادارے والے پوچھنے والے ہوتے ہیں, نہ پولیس والے ہوتے ہیں. اسلام آباد میں کچھ دن پہلے F9 پارک میں لیڈی واز ریپڈ. یہ کیا کوئی سویلائز معاشرہ؟ بلوچستان اور فاٹا میں, فارمر فاٹا میں آرمڈ انسرجنسیز وہ جاری ہیں. سینٹر آف کراچی, پاکستان کے سب سے بڑا شہر, امپورٹنٹ پولیس انسٹالیشن آفس ہے, وہاں پہ جا کے حملہ ہو رہے ہیں. بھائی اگر یہ چیزیں بھی محفوظ نہیں, پولیس لائنز پشاور محفوظ نہیں, پولیس کی چوکیاں محفوظ نہیں, تو پھر کون سی چیز یہاں پہ محفوظ رہ گئی؟ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جرنلسٹ کے خلاف, نہ صرف جرنلسٹ کے خلاف, سیاسی ورکرز کے خلاف بھی ہوا ہے. پولیٹیکل پارٹیز سے جو وابستہ تھے ان کے ساتھ بھی ناروا سلوک یہاں پہ کیا گیا ہے. سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ کس قسم کا معاشرہ ہے جہاں پہ ایسے چیزیں ہوتی ہیں. ارشد شریف کا تو بہت ہی ایکسٹریم کیس ہے, ایک آدمی کو مرڈر کر دینا, وہ پاکستان میں رہ نہ سکے, اسے باہر جانا پڑے, وہاں سے پھر اسے اپنا مقام جو ہے منتقل کرنا پڑے, مجبور ہو کر وہ کرے, اور پھر جس طریقے سے آرگنائزڈ مرڈر اور اساسینیشن ارشد شریف کا ہوا. مطلب یہ کس قسم کا ماحول ہے, کس قسم کا ہم نے معاشرہ جو ہے یہاں پہ بنا دیا ہے. کئی جرنلسٹ کے ساتھ ہوا ہے, جس قسم کا عمران ریاض کے خلاف ایک مقدمہ, دوسرا مقدمہ یہاں لے کے جانا. آپ کو شکایت ہے تو قانون کا سہارا لینا چاہیے, لیکن یہ چیزیں پچھلے سال خاص طور پہ, اور پچھلے سال جو ہے سیاہ حروف میں لکھا جائے گا 2022 جو ہے, کہ ایک انتہا کو چیزوں کو پہنچا دیا گیا. کیا وجہ تھی؟ لوگ بہت حساس ہو گئے تھے, جنہیں ہم ایک ادارے کہتے ہیں, مقتدرہ کا نام دیتے ہیں, وہ کوئی زیادہ حساس ہو گئے تھے. تو یہ سچویشن جو ہے یہ بہت ہی ایب نارمل قسم کی سچویشن ہے, ارریشنل سچویشن ہے. اور یہ نشانی اس طرف کرتی ہے کہ جو ہم نے بنا دیا ہے, جو پاکستان کا ماحول بنا دیا ہے, اس میں یہ چیزیں نارمل سمجھی جانے لگی ہیں. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. سوچنا تو یہ بھی چاہیے کہ وہ جسے کہتے ہیں سویلائزڈ کانڈکٹ, مہذب رویے, وہ اس معاشرے میں رہ گئے ہیں. آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو جب تک آپ لاٹھی نہ اٹھائیں, آپ یہ تو وہ جو ہم کہتے تھے 10 نمبریوں کا کہ یہ شیوا ہوا کرتا تھا, وہ جو انڈر ورلڈ آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم نے ایسے گزرے ہو, یہاں ایسا تم نے دیکھا ہے تو ہم تمہارا حساب کر لیں گے. انڈر ورلڈ چاہے پاکستان میں ہو, چاہے برطانیہ میں ہو, چاہے جسے ہم مافیا کا نام دیتے ہیں امریکہ, یہ طور طریقے تو وہاں پہ ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیجئے یہ قدرت کا کرنا کیسا ہے. ایک تو پچھلے سال کے مختلف کارنامے ہوئے, فلانے کو اٹھا لو, ہاں صرف اٹھانا بھی نہیں, وہ بھی اس سے بھی دل میں قرار نہیں آتا جب تک اسے بے عزت نہ کیا جائے. اور ہمارے یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے شعور کا
हमारी हिसासियत का, हमारी तालीम का, हमारी अक्लमंदी के क्या मेयार हैं कि हमारे यहाँ जो बेइज्जती करने का तरीका है वो एक ही है कि फ़लाने को बेलबास कर दो, फ़लाने को उल्टा कर दो, और जब तक वो उल्टा ना करें और लिबास के साथ आप कुछ ना करें तो दिल में वो जो चैन है, जो करार है, वो नहीं आता। तो इससे पता चलता है कि हमने किस किस्म का माशरा बना दिया है। और जब ये सूरत हाल हो तो फिर हैरानगी कोई नहीं रहनी चाहिए कि यहाँ पे कोई चीज़ मैनेज हो ही नहीं रही। मुल्क का हाल क्या हो गया है, मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, सियासी उखाड़ के हवाले से, कैसा कैसा यहाँ पे पाकिस्तान में वो हो गई है। सहाफ़ियों के साथ तशद्दुद जो है वो इन आइसोलेशन नहीं है, एक लार्जर कैनवस, एक लार्जर पिक्चर है जिसका एक हिस्सा है। जब इतना कुछ डिसऑर्डर हो जाए माशरे में, अफरा तफरी हो जाए, जहाँ पे सहाफ़ी तो या मीडिया के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं वो तो टारगेट हो रहे हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ हो रहा हो यहाँ पे। क्राइम जो है, ऑर्डिनरी क्राइम या जिसे आप स्ट्रीट क्राइम कहते हैं, वो शहरों में, देहातों में, मेरा ताल्लुक़ देहाती इलाके से है, वहाँ भी वो भी राइज कर रहा है। तो यूँ पता चल रहा है कि हमारे गिरफ्त में, हमारे कंट्रोल में कोई चीज़ रह नहीं रही। थिंग्स आर स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और जो हम एक लफ्ज़ थोड़ा लाइटली या लूजली यूज़ करते हैं, अनार्की, एनर्की, वो एनर्की की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी जो है वो लगता है कि ब्रेक डाउन कर रही है। पहले तो ये एक सिर्फ इस्तिलाह थी कि जी माशरे में ये हो सकता है, ये हो सकता है, अवाम का ये मूड हो तो पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन ये तो जैसे एक फिल्म हमारे आंखों के सामने चल रही हो, द डिसऑर्डर इन पाकिस्तान, वो रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं। और सिर्फ हैरानगी ये होती है कि इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए था, इतना जल्दी कैसे हो गया है। जैसे इवेंट्स टेलीस्कोप होते हैं, मतलब जिन्होंने देर तक रहना हो लेकिन आप टेलीस्कोप करके बिल्कुल यहाँ नैरो उन्हें कर देते हैं। पाकिस्तान में आजकल जो पिछले 8-10 माह में हुआ है, वो जो एक स्पीड एक्सेलरेट हो जाती है, जब चीज़ें टूटने लगें तो शुरू में आहिस्ता होता है। नेचुरल फिनोमेना में भी ऐसे ही होता है। वो जब ज़लज़ले कोई आते हैं तो पहले हल्की हल्की वो थरथराहट होती है, और फिर एकदम जो है माउंटेन्स जो है गिरने लग पड़ते हैं, और फिर चीज़ें तेज़ हो जाती हैं। पाकिस्तान में तो ये हो रहा है। जर्नलिस्ट के साथ अरशद शरीफ सर फहरिस्त, बाकी जो हैं आपकी रिसर्च इसमें है, बहुत अच्छा आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है। ये सिर्फ शो करता है कि हम एक इर्रैशनल, अकल पे मबनी नहीं, रैशनल थिंकिंग पे मबनी नहीं, बल्कि मावराए रीजनिंग एक हम माशरा, ये नहीं कि बनते जा रहे हैं, बन चुके हैं। जो हमारी कौमी गुफ्तगू है, जो अखबारों में जो होती है, जो टॉपिक्स हैं, जो हमें जो चीज़ें हमारे जहनों पे बैठी होती हैं, वो जो कुछ दिन पहले ननकाना साहब में हुआ था, एक आदमी पुलिस की तहवील में है, उसको हमला किया जाता है, निकाला जाता है, और जिस बर्बरियत से उसके साथ फिर डील किया जाता है। और ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है, हमारे माशरे का ये मामूल बन गया है। लाहौर शहर में ऐसे वाक़यात हुए, सेंट जोसेफ्स कॉलोनी में, गोजरा शहर में हुए, कसूर में एक वो क्रिश्चियन और उसकी बीवी को भट्ठे में, जलते भट्ठे में, बात होती है कुछ और होती है बीच में, वो कुछ तहकीक करने से पता चलता है। लेकिन आप करते क्या हैं कि उसको लिबादा किसी और चीज़ का दे दिया, और ना कोई आपका इदारे वाले पूछने वाले होते हैं, ना पुलिस वाले होते हैं, करके हाँ जी पर्चा दर्ज कर दिया, ये हो गया, फलाना हो गया।
ये इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले F9 पार्क में अफसोसनाक वाक़या हुआ। A lady was raped। 2 आदमी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, पुलिस की तहवील में आ जाते हैं, लेकिन आप कानून को अमल में नहीं लाते, करके भड़का दिया जाता है। ये क्या कोई सिविलाइज्ड माशरा है? ये चीज़ें आप अपनी आंखों से, अपने कानों से सुन रहे हैं। पिशार का एक वो केस होता है, धमाका होता है, किस तरीके से होता है। बलूचिस्तान और फाटा में, फॉर्मर फाटा में आर्म्ड इंसर्जेंसीज वो जारी हैं, और वो जो हमारे रियासत है, मुल्क है, माशरा है, उस पर वो हमले हो रहे हैं। उनके अहदाफ क्या हैं, उनके एजेंडाज क्या हैं, उस पर बात हो सकती है। कल जो कराची का वाक़या है, सेंटर ऑफ कराची, पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर, और वहाँ पे उसमें आप देखिए, हिम्मत देखें, ऑडेसिटी देखें कि वो जो एक इम्पोर्टेंट पुलिस इंस्टॉलेशन ऑफिस है, वहाँ पे जाके हमला हो रहा है। और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसे इवेंट्स का क्या है? क्योंकि ऐसे इवेंट्स का ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि भाई अगर ये चीज़ें भी महफूज नहीं, पुलिस लाइन्स पेशावर महफूज नहीं, पुलिस की चौकियाँ महफूज नहीं, तो फिर कौन सी चीज़ यहाँ पे महफूज रह गई है? और जो आर्म्ड फोर्सेस के साथ हो रहा है, ये जो इंसर्जेंसीज हैं, ये आर्म्ड इंसर्जेंसीज हैं। और इतना अफसोस होता है कि आए रोज़ हमारे आर्म्ड फोर्सेस के आदमी, फ़ौज के आदमी वहाँ जो है मर रहे हैं, ऑफिसर्स मर रहे हैं। और ये किसी और मुल्क में हो कि एक दिन में एक मेजर और एक कैप्टन जो है उनकी डेथ्स हो जाए, दूसरे दिन 4-5 हो, वहाँ कहराम मच जाए। अमेरिका में ऐसे हो, यूरोपियन किसी कंट्री में हो, तो वहाँ पे तूफ़ान बर्पा हो जाए। हमारी ये हालत है कि वी आर गेटिंग यूज्ड टू इट। हाँ, 4 आदमी आज केपी में हो गए हैं, 4 आदमी कोलू बलूचिस्तान में हो गए हैं, बट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और जिनको सिक्योरिटी सिचुएशन पे नज़र रखनी चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी है कि फ्रंट लाइंस जो सिक्योरिटी हैं उनको संभालें, उनको सियासत से फुर्सत नहीं मिलती। वो किन चीज़ों पे लगे हुए हैं कि कौन किससे बात कर रहा है, टेलीफोन पे कौन सी गुफ्तगू हो रही है, आप किसी जज के बारे में बात कर रहे हैं, या लड़का लड़की जो है वो, या कोई सियासतदान है तो वो अपनी कोई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। मतलब है कि उनकी जो नज़रें हैं, उनकी दूरबीनें हैं, वो इतनी फाटा और बलूचिस्तान और वहाँ पे नहीं लगी हुई, वो मखसूस बेडरूम्स में लगी हुई है कि बेडरूम्स में क्या हो रहा है। और गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनके सामने सबसे इस वक्त अहम मसला ये है कि गोमल यूनिवर्सिटी में लड़का और लड़की जो है, लड़के और लड़कियां इकट्ठे ना कहीं देखे जाएं, क्लासरूम्स में ना हो, और वो ऑर्डर पास कर देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लाहौर में जो हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग है, उसका भी मसला, सबसे अवलीन मसला रिसर्च नहीं है, लर्निंग नहीं है, एकेडमिक सब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये है कि कोई चाय खाने में, कोई कैफेटेरिया में कोई लड़का और लड़की तो साथ नहीं बैठ जाते, और अगर वो हो जाए तो फिर कहराम मच जाता है। तो इस किस्म का जब आप माशरा बना देंगे तो फिर यही है, जब ये आप हमारी तरजीहात होंगी तो फिर ऐसा ही होगा जैसे हो रहा है।